دھرم بتا دیجئے. میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن کسی کتاب میں ہنسا کی بات نہیں کی گئی. کسی کتاب میں کسی دھرم کو, عیدگاہ کو, کسی کے عبادت گاہ کو جلانے کا حکم آیا ہے. سکھ عیسائی جینی سب ایک ہو کر رہے. کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کو برگلاتا ہے, کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی بیمار ہے. لہذا مسلمان کا کام ہے انسانیت کا پیغام دینا چاہیے. میرے بھائیوں, جگہ پہ جہاں پہ انصاف کی بات ہے, انسان کسی بیٹی مسلم خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو, ہندو بھائی اس کے سمرتھن میں آ جائے, ہندو بھائی اس کے خلاف, ہندو بھائی اس ظالم کے خلاف ایکشن لے. اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ ریپ ہو, مسلمان اس آواز کو اٹھائے, تب یہ انسانیت. جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو انسان سے خارج ہو جاتا ہے, اس کے اندر حیوان کی طرح مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے آخر کر تم سب ہماری ہی بنتے ہو. اس کی ایک پیاری سی مثال آپ کو دے دوں. مان کے چلیے ہمارے سامنے ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے اور 4-5 آدمی کے سامنے پیالہ رکھا گیا ہے اور 4-5 آدمی سے کہا جائے یہ بتاؤ تم اس دودھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. یہودی کہے گا مجھے گھی پسند ہے, عیسائی کہے گا مجھے پنیر پسند ہے, مسلمان کہے گا مجھے دہی پسند ہے, ہندو کہے گا مجھے مکھن پسند ہے, بٹر پسند ہے. اسی طرح کرتے کرتے سب کی الگ الگ رائے ہو جائیں گی اور ایک ہی چیز سے, دودھ ہی سے گھی بن جائیں گے, پنیر بن جائیں گے, رسگلہ بن جائیں گے, مٹھائیاں بن جائیں گے, دہی بن جائیں گے, مکھن بن جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اب سب کا جب اثر جوڑا جائے گا, یہ پنیر کس چیز سے بنا ہے, یہ گھی کس چیز سے بنا ہے, یہ دہی کس چیز سے بنا ہے, یہ مکھن کس چیز سے بنا ہے, سب کا جواب آئے گا, سب کا جواب آئے گا کہ دودھ سے بنا ہے. لہذا دودھ اصل ہوا اور دودھ سے یہ شاخیں نکلی, دودھ سے یہ چیزیں نکلی. ہم سب اللہ کے ہی ہے. وہ الگ بات ہے کوئی دودھ سے عیسائیت نکلے ہے, وہ الگ بات ہے دودھ سے کوئی یہودیت نکلے ہے, دودھ سے کوئی مسلمان نکلے ہیں, دودھ سے کوئی جینی نکلے ہیں, لیکن سب کا اصل مقصد دودھ ہی ہے. سب کو دودھ تک پہنچنا ہی ہے. پنیر یہ کہے کہ میں اللہ کے پاس نہیں, دودھ کے پاس نہیں ایسے پنیر بن جاؤں گا, بغیر دودھ کے پنیر بن ہی نہیں سکتا, بغیر دودھ کے دہی بن ہی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں, ذہنیت الگ الگ ہونے سے ہم رشتہ سے کاٹے جاتے ہیں, اس کے رشتے سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں. کیوں مضبوط ہو جاتے ہیں؟ جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے, میں کہہ دوں گا میں فلاں کا بیٹا ہوں, لیکن مجھے اپنے باپ کے بارے میں جب علم نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے تو مجھے دنیا لات مارے گی کہ یہ تو بیوڑا ہے, دنیا لات مارے گی تو یہ اس کا نہ وجود ہے, باپ کا پتہ نہیں, دادا کا پتہ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب ہم کسی چیز سے جڑے رہیں گے, ہمارا واسطہ جب کسی چیز سے جڑا رہے گا, ہم اور آپ مضبوط رہیں گے. بھائی چارہ کی مثال یہ سب سے بہت بڑی مثال اور اہم مثال ہے کہ دودھ سے جس طرح دہی بنتا ہے, دودھ سے پنیر بنتا ہے, دودھ سے مکھن بنتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے, اسی سے یہودی نکلے ہیں, عیسائی نکلے ہیں, لیکن سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کی مثال ایک اور میں دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, آج میں لڑانے نہیں آیا ہوں, نہ ہی مجھے کرسی پر آنے کے لیے میں ایسا بول رہا ہوں, نہ ہی مجھے راجنیتی کے میدان میں آنا ہے. میں تو سب کو آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں, آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, ایک بات یاد رکھیے, مان کے چلیے سب کے نزدیک اس کا ایشور سچا ہوتا ہے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ سچا ہے, یہودی کہتا ہے کہ نہیں میرا ایشور سچا ہے, عیسائی کہتی ہے کہ میرا ایشور سچا ہے, ہندو کہتے ہیں کہ میرا ایشور سچا ہے. اگر دنیا میں ایک ہی ایشور سچا ہوتا, دنیا میں اگر سب کے ایشور سچا ہوتے تو یہودی کے ایشور کہتے ہیں نہیں میں عیسائی والوں کو, عیسائیت کو کچھ نہیں دوں گا, عیسائی کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا. میرے بھائیوں, اسی طرح مسلمان کا جو خدا اللہ ہے وہ کہیں گے کہ نہیں میں کسی ہندو کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا, سورج کی روشنی اس کے گھر پہ نہیں پہنچے گی. لیکن مجھے بتائیے کیا سورج کی روشنی سے کوئی محروم رہا ہے؟
बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज्यादा दिमाग लगाए, अकल दौड़ाए तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं, हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। हम सबका पालने वाला एक ही है जो ऊपर वाला है। गुरु सबके अलग अलग है, रहबर सबके अलग अलग है, रहनुमा सबके अलग अलग है, लेकिन हम सबका पालने वाला एक ही है। और इस चीज को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सबका पालने वाला ऊपर वाला है। मेरे भाइयों, लिहाजा नूपुर शर्मा जैसे अगर कोई साथ निशाने नबी में गुस्ताखी करता है तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नूपुर शर्मा से कहिए, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो। तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। तो मुझे भी रामायण मालूम है, मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो, वो अलग बात है कि मेरे भाइयों, इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो, लेकिन मेरे भाइयों, सबको एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों कि वो भी सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं। राम जी सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए हैं। देखो नूपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो। इस तरह करके नूपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद एहतिजाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए। एक शख्स आया और मस्जिद में बैठ कर पेशाब करना शुरू किया, और आप ये शख्स आया, देहाती शख्स आया और मस्जिद में बैठ कर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा डांटा, फनकारा, अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, और सहाबा इसको डांटिए नहीं, इसको समझाइए, सही तरीके से समझाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद जो मुकद्दस जगह है, इबादत के लिए मखसूस है, उस जगह पे गंदगी फैलाई जा रही है, उस जगह पे पेशाब कर रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, आप फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उसको डांटिए नहीं, उसको फनकारिए नहीं, पहली मर्तबा आप उसको समझा दीजिए। देखो देखो, ये मस्जिद है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस्लाम की तालीम तो ये है कि पहली मर्तबा कोई गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, तीसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, चौथी मर्तबा उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आई मोमिनो, तुम्हारे बारे में हदीस है कि युल्दगु ला युल्दगुल मोमिन, मोमिन मिन चुहरिन मर्रतैन, एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मोमिन की लाठी एक बार से दोबारा गुम नहीं होती है। जिस तरह आगे एक बिल मिला, सांप का बिल मिला, खाई मिला, हम गए और अपनी बुज़दिलाना हरकत और ना समझ के कारण उस खाई में, उस सुराग में, उस बिल में हम अपना हाथ डाल दिए। जैसे उस बिल में हाथ डाले, सांप ने हमें डंक मार दिया। एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा ये बताइए, जब कहीं बिल हो, कहीं सुराग हो, मेरे भाइयों, दिमाग, अक्ल का तकाजा यही है कि उस जगह पे छेड़खानी ना किया जाए, हाथ ना डाला जाए, पैर ना डाला जाए। हो सकता है कोई मुझी जानवर हो, जहरीला जानवर हो, अगर तुम्हें डस ले, मेरे भाइयों, जब आपको पहली मर्तबा झटका लग जाएगा तो आप दूसरी मर्तबा कहीं पर भी सुराख नजर आए, कहीं पर भी बिल नजर आए, तो आप उस जगह पे दोबारा हाथ डालने से 100 बार सोच लेंगे। इसी को कहा गया ला युल्दगुल मोमिनु मिन चुहरिन मर्रतैन, मोमिन एक मर्तबा एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मेरे भाइयों, हदीस की ये किताब कहती है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मोहब्बत न करने लगे,
नूपुर शर्मा तक ये तालीम पहले जानी चाहिए थी, ये तालीम उनके पास भेजना चाहिए था। देखो नूपुर शर्मा, तुम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, माफ कर देंगे हम, रुजू कर लो, या फिर अगर तुमने ठेस पहुंचाने की नियत से नहीं की हो तो ये बोल दो कम से कम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नबी से प्यार करते हैं और हमारे नबी ने प्यार करना इतना सिखलाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर लाया है, मुत्तफक अलैह की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है। फरमाते अल्लाह के नबी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ नूपुर शर्मा, इस्लाम की तालीम यही है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी से सच्ची दोस्ती करने के लिए अगर कामिल ईमान बनना है तो अल्लाह के नबी से सच्ची दोस्ती ऐसे कीजिए, मोहब्बत ऐसे कीजिए जिस तरह बाप अपने बेटा से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि कहा उससे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसान अगर कामिल बनना चाहे, कामिल मोमिन बनना चाहे, पुख्ता ईमान वाला बनना चाहे तो एक इंसान को अपने नबी से बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, अपने नबी से माँ से बेटा से भी ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ तक हदीस के अल्फाज है, वन्नास अजमईन, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मोहब्बत नबी से करनी चाहिए। नूपुर शर्मा, तुम हमारे घरों को जला दो, हमारे कारोबार में आग लगा दो, हमारे घरों को बुलडोजर से गिरा दो, हम सब्र कर लेंगे। नूपुर शर्मा, हम सब्र कर लेंगे। हमारे कितने घर ऐसे जो जला दिए गए हैं, बुलडोजर से गिरा दिए गए हैं, लेकिन हम सब्र कर लिए क्योंकि ये मेरा खजाना दिया है। लेकिन अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम बर्दाश्त जल्दी से नहीं करेंगे। इसलिए मैं मोहलत देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप इस चीज से रुजू कर लीजिए। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत हमें और आपको कितनी होनी चाहिए। आए नौजवानों, हजरत उमर जैसा सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और आपसे फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी करता हूँ कि अपनी जान से, अपनी जान के अलावा दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ जान छोड़ के। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर आप कामिल ईमान नहीं हुए हैं, ऐ उमर आपका ईमान कंप्लीट नहीं है, ऐ उमर आपका ईमान ताजा नहीं है, आप कामिल ईमान वाले नहीं है। उमर समझ गए कि अपने दिल से भी ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए। ये तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एहतजाज कीजिए, धरना दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। इस्लाम की तालीम अगर लोगों के सामने फैल जाए, इस्लाम की सच्चाई लोगों के घरों तक पहुंच जाए, मेरे भाइयों, गांधी जी ने कहा था, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, उनकी वसअत नजरी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा वो इंसान अगर भारत में नाफिज हो जाए तो कोई जरूरी नहीं मुसलमान दावत तबलीग के मैदान में आए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी हो, नबी के खिलाफ कोई भाषण दे, जहां पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, वहां पर आप इस्लाम की तालीम को पहले आम कीजिए, उसके बाद आप अलल ऐलान एहतजाज कीजिए, अपना हक मांगिए, लेकिन इस्लाम की तालीम को पहले फैलाइए। ये मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ। मैं कम दर्जा और ना इल्मी, बिल्कुल ना इल्म के बराबर हूँ मैं, लेकिन मैं बावजूद आपसे ये मुतालबा करता हूँ, एक 20 साल के लड़के होने के हैसियत से सारे उलमा से मेरी अपील है कि आप पहले इस्लाम की तालीम को मंजर आम पर लाइए, इस्लाम की सच्चाई घर घर में फैलाइए। कोई जरूरी नहीं है जिहाद, इसका मतलब ये नहीं कि लड़े कत्ल हो जाए, मारे जाए, जिहाद का इसका मतलब नहीं। जिहाद का मतलब यह है कि हर गुमराही या हर भटके हुए इंसान को अगर सही रास्ते पे लाया जाए, उसी का नाम जिहाद है। आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, आप उसको सही रास्ते पे लाए, इसी का नाम जिहाद है। कोई इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, आप उसको अगर कम से कम जहर उगलने से बचाए, इसका नाम जिहाद है। मेरे भाइयों, पहले इस्लाम की तारीफ को मंजर आम पर लाना चाहिए। इस्लाम में जो भाईचारा की मिसाल बयान हुआ है, उसको सामने पेश कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथ आगे बढ़िए। इस्लाम हमें और आपको वही सिखाता है। लिहाजा हम सब से अपील करते हैं कि हम सब
इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। जब तक रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी सब एक होकर रहे। कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी को बरगलाता है, कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत देता है। कोई एक ऐसा धर्म बता दीजिए। मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया, लेकिन किसी किताब में हिंसा की बात नहीं की गई। किसी किताब में किसी धर्म को, ईदगाह को, किसी के इबादतगाह को जलाने का हुक्म आया है? नहीं आया है। मेरे भाइयों, हम और आप कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन कि हमने रास्ते पे कुत्तों को देखा चलते हुए, उनके सामने गाय आया, नजरअंदाज कर दिया। हमने कुत्तों को और आगे देखा, उनके सामने बैल आया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब आगे कोई दूसरा कुत्ता मिल गया, वो कुत्ता आपस में छेड़खानी करना शुरू कर देता है। मुसलमानों, हम सब चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम सब मुसलमान हैं। लिहाजा मुसलमान का काम है इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। मेरे भाइयों, जगह पर जहां पे इंसाफ की बात है, इंसाफ करना चाहिए। आज तो इंसाफ का तकाजा ही है कि अगर हिंदुस्तान में किसी बेटी मुस्लिम खातून के साथ बलात्कार हो, हिंदू भाई उसके समर्थन में आ जाए, हिंदू भाई उसके खिलाफ, हिंदू भाई उस जालिम के खिलाफ एक्शन ले। अगर किसी हिंदू बहन के साथ रेप हो, मुसलमान इस आवाज को उठाए, तब ये है इंसानियत। जब इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो इंसान से खारिज हो जाता है, उसके अंदर हैवानियत आ जाते हैं, वो हैवानियत के शिकार हो जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मंदिर मस्जिद ना करके, लड़ाई फसाद ना करके